यस सर, आपकी स्लाइड शेयर शेयर है सर। शेयर हो गई ना? जी सर। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif, and I started my career as a lecturer from Minchinabad district, Bawalnagar. Then I later on joined the Bureau of Statistics, Government of Punjab, through the Punjab Public Service, and later on I joined the Planning and Development Department as a research officer, now redesignated as a planning officer. Then I raised to the rank of a chief. Last time I was working as chief monitoring in the P&D department and proceeded on a retirement on April 2014. Meanwhile, I also visited the Bradford University and specialized the project planning areas. I also visited Singapore, National College of Singapore, excellence in service delivery. Now, today I have to discuss with you the topic projects and project development. Mostly the people, especially in the area of education, and so I have the experience. One thing I forget to tell you, that I am among those who established the MPDD, Management and Professional Development Department. I served there as senior instructor planning from 1997 to 2011, and raised 6 buildings there: academic block, administrative block, and the hostel. Now, I have experienced that most of the people of the education doesn't know about the development, and they have to see whenever they are asked to prepare a PC1 project document, they have to seek the help from the others. They move to the planning and development department and the other organization for helping. I will try my best to, because I have spent a long time in handling the projects and project development. So I will try my best to tell you about the planning and development. We normally use 2 words. We normally use 2 words, and the majority of people doesn't understand. Not all, majority. Planning, there are 2 words, planning and development. What is meant by planning? It is very essential to understand what is meant by planning. We can we can explain that the planning is what? Thinking for the future, for getting certain objectives. For example, a man is going on retirement, I'm quoting one example, going to retire next year. He's on the bed and thinking, after 1 year, when I will be retired from the service, what I will do. तो उसके साथ उनकी बेगम साहिबा हैं, वो कहती की है तुसी आप भी नहीं सौन देते, सान भी नहीं सौन देते, की गल है? वो कहता है आई एम थिंकिंग what I will do after the retirement. We don't have our own house. We have to marry the children. There are so many problems. So I am planning how we have to proceed. So हम simply ये कहते हैं कि whenever you want to achieve something, you have to think. And thinking के बाद फिर you have to take a decision. Decision is a very important. अगली स्लाइड में जब हम आएंगे इस पे, वो मैं आपको बताऊंगा कि decision making क्या चीज है. तो ये क्या है? Thinking about the future for achieving certain objective is what? Planning. और इसमें आप कुछ नहीं करते, just you are sitting somewhere, you are sitting in your workstation or anywhere else, but you are thinking. इसके बाद ये देखें, one of the best definition for explaining the planning, because in the development sector, planning means something. There are the prerequisites to explain. Planning is a decision making. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी
कि जब आप थिंकिंग करते हैं, अगर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते तो सारी आपकी मेहनत जो है दैट इज एब्सर्ड। डिसीजन मेकिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब ये एक चीज एडिशनल हो गई कि जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक लफ्ज ये, इट इज वेरी नेसेसरी टू एक्सप्लेन एफिशिएंट रिसोर्सेज, एफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये एफिशिएंट से क्या मुराद है, तो टाइम बहुत चाहिए, वन मैं ही आपको करता हूं कि व्हेन वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द मैक्सिमम बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप थोड़े पैसे से मैक्सिमम काम कर लें यूजिंग सम टूल्स, यूजिंग सम स्ट्रेटजीज, तो हम इसे कहते हैं दिस इज व्हाट एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आप कोई कमरा बनाते हैं, कमरे में आप दरवाजा अगर लगाएं देयार की लकड़ी का या सागवान की, तो आज के जमाने में तो लाखों के पैसे चाहिए। अगर आप शीशम का यूज करें तो उससे कम पैसे चाहिए। और अगर आप इसका जो है क्या कहते हैं इसे, तीकर, ये घर का दरवाजा बताए, तो ऑब्जेक्टिव वही करेगा, सिक्योरिटी का पर्पस सर्व करेगा, लेकिन इन कम पैसों में। और क्या होगा, इन कम पैसों से बहुत सारे दरवाजे बहुत सारी बिल्डिंग्स में लग सकते हैं, बट नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। ये है। अच्छा, अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। ये ध्यान में रखें कि जब आपका टाइम अगर अनलिमिटेड हो जाए तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करते हैं। टाइम इज बाउंड, इट इज वट एवर इज ए प्लानिंग प्रोसेस जो है ये टाइम बाउंड है, इस पे आपको फोकस करना होगा। अच्छा जी, अब हमने कहा कि अगला जो हमारा लफ्ज है हम जो यूज करते हैं वो है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट से क्या मुराद हमें, हम क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में ये इकोनॉमिक्स का है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की ये वो पोर्शन है। तो अब डेवलपमेंट से क्या मुराद है, प्लानिंग हमने कर ली कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे और ऐसे पैसे आ जाएंगे और इन पैसों को इस मशीनरी के इस सिस्टम के तहत यूटिलाइज करेंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा आगे आएंगे। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है वो इसकी एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट इज एडिंग वेलफेयर टू द ह्यूमैनिटी। जब आप ये प्लान करते हैं कि जी हमारे घर की जो सालन है, मैं वेरी क्रूड एग्जांपल्स दे रहा हूं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, कि फ्रिज ना होने की वजह से आपके जो जो शाम को बचाया जाता है वो सुबह को खराब हो जाता है, काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो आप प्लान करते हैं कि यार अगर कोई मैनेज कर लें, कोई पैसे मैनेज कर लें, कोई फ्रिज ले लें छोटा सा, तो ये हमारी बचत हो सकती है। तो क्या करते हैं आप, एक छोटा सा फ्रिज मैनेज कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो सालन है, जो ईटेबल्स हैं वो खराब नहीं होते। तो ये क्या होगा, इससे आपकी सेविंग आएगी, आपकी चीजें खराब होने से सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। तो हम कहते हैं एनी एक्शन जो लेने के बाद अगर ह्यूमैनिटी के बिहेवियर में तब्दीली आ जाए तो वो आपकी डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट को कैसे मेजर करें, कैसे पता लगे कि डेवलपमेंट हुई है मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। जो ये डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में जो पहली चीज है चेंज। फर्ज करें फॉर एग्जांपल आप अपने गांव से निकले हैं और 5-6 साल के बाद अपने गांव में जाते हैं, इससे पहले सफाई खेतों के और ट्यूबवेल के कुछ नहीं था। आप वहां जाके ही देते हैं कि छोटी छोटी सड़कें भी बन गई हैं, कोई डिस्पेंसरी भी बन गई है, प्राइमरी स्कूल भी बन गया है। तो आप जाके कहते हैं ओ वही चेंज। तो वो चेंज जो है ये एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। इम्प्रूवमेंट द सेम वे, ऑलरेडी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी, उसमें आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट की और उसकी शक्ल को बदल दिया। जैसे पहले आपने सादा ये जो टेप लगा के पानी आप मुख्तलिफ जगहों पे नलके लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्टर आ गए, फिल्ट्रेशन सिस्टम आया, इम्प्रूवमेंट हो गई, वो वाटर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल हो गई, उसे हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट। एसिड्स इन एडिशन इन एसिड्स, ये एक और इंडिकेटर है
कि जब कभी भी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट आती है, तो आपके एसेट्स बढ़ते हैं। आप जब भी सेविंग आएगी आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे, आप उसकी डेवलपमेंट, आपका दिमाग काम करता है कि हम यूं कर ले, ऐसा कर ले। इसके एक और ये चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड। जब आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत सारा होते हैं, फिर आपका लाइफ स्टाइल भी है वो भी तब्दील होता है, उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आती है। गांव में गरीब लोगों का ड्रेस देख लें, और जो शहरों में आ जाते हैं या वहां भी फैसिलिटीज एक्सटेंड हो जाती हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। बच्चे पहले अनपढ़ होते थे, अब उसके वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों के खाने की इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और इससे एक आखिरी जो हम नॉर्मली इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब एक तो आप तो विद इन दी कंट्री करते हैं, एक करते हैं हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों से कितना डेवलप्ड है, तो उसके लिए जो एक इंडिकेटर है वो है पर कैपिटा इनकम। मुख्तलिफ मुल्कों में जो उनकी पर कैपिटा इनकम, उससे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो ये है डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट को, कि डेवलपमेंट कैसे आती है। हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट कैसे आती है, उसमें इन्वेस्टिंग कैपिटल इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। कैपिटल एक्टिविटीज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसके रिजल्ट में फिर आपको डेवलपमेंट मिलेगी। कैसे? प्लानिंग फार्मुलेटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यही हमारा आज का टॉपिक है कि प्लानिंग फार्मुलेटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो अब हम देखने की जरूरत यह है कि ये प्रोजेक्ट क्या चीज है। लेकिन इससे पहले ये एक देख लें कि हम डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है, उसको डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इम्प्रूवमेंट टेक्स प्लेस। उसके क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स। आप क्या करते हो? असेस करते हो कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है। इट कंसिडर्ड दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। उसके मुख्तलिफ, जैसे पर कैपिटा इनकम है, ये भी एक इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि डेवलपमेंट का लेवल क्या है। हाउएवर द लेट डॉक्टर महबूबुल हक हैज मेड ए significant contribution in the measuring the development by introducing a new concept of human development index, which is based on GNP, per capita, मैं अभी बात कर चुका हूँ, per capita income, literacy rate and life expectancy। जब डेवलपमेंट होती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव होती हैं और लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ जाता है। अब हम जब जाते हैं आगे डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे एरियाज क्या है, हमारे इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर आवर प्रॉब्लम्स, इश्यूज, व्हाट आर अवेलेबल रिसोर्सेज। हमने जब प्लानिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो हमें इन चीजों से वास्ता पड़ेगा। व्हाट आर आवर अवेलेबल रिसोर्सेज, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा आप मूव नहीं कर सकते आगे। स्ट्रेटेजी इज व्हाट, हाउ टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्स। क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे। तो मैंने एक बात आपको बताया था, एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। 4 एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये मैं आपको करना चाहता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक्स के पिलर्स कहलाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर, मटेरियल, ये सारी चीजें। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल रिसोर्सेज जो है जिसे आप कहते हैं। टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट मशीनरी की अवेलेबिलिटी जो है, जब वो अवेलेबल होगी तो आप कुप विद करेंगे विद द अदर कंट्रीज। व्हाट इज डेवलपमेंट प्लानिंग, ये मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन improvement takes place in the availability of basic needs. When economic has contributed to greater sense of self-esteem for the country and individual, when material advancement has expanded the
रेंज ऑफ चॉइस फॉर द इंडिविजुअल्स। यानी जब आपके ये स्पेन डेवलपमेंट का बहुत बढ़ जाए तो फिर आप जो है वो हर इंडिविजुअल की चॉइस डिफरेंट हो जाएगी, वो मुख्तलिफ एरियाज ओपन हो जाएंगे जहां वो चाहेगा इन्वेस्टमेंट करेगा। डेवलपमेंट प्लानिंग मीन्स, ये एक सी चीजें सारी, मीन्स एन इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टोरल प्रोसेस through which governmental institutions streamline social, economic and special growths। यानी जब आप डेवलपमेंट का करते हैं, हम अभी आगे जिक्र करेंगे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जब हम बना रहे होते हैं अपने कंट्री का, तो हम सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं देखते, हमें ये भी देखना है एजुकेशन में हम कहाँ हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हेल्थ में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोजीशन है, ये सारे एरियाज हम कवर करेंगे। तो फिर हम एक प्लान डेवलप करेंगे और वो नाफिज करेंगे। नॉर्मली इन आवर कंट्री द 5 ईयर प्लान्स आर formulated for 5 years। इसे भी हम डिस्कस करना है हमने आगे। डेवलपमेंट प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक, द अदर वे वी कैन डिफाइन systematic, carefully formulated course of actions, policies designed to achieve the development। जो आपकी टारगेटेड एरियाज हैं उनको अचीव करने के लिए आपको ये करना होगा। अब क्या हमारे हमारे खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप इसे फोकस कर सकते हैं, हमारा ये सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इसमें देखिए डेवलपिंग कंट्री इन जनरल पॉवर्टी हमारा बहुत बड़ा और एक इशू क्या है, पॉवर्टी है हमारा। अभी भी ये सिंध के एरिया में जो है बच्चे भूख से और प्यास से मरते हैं। प्राइमेटिव एग्रीकल्चर हमारा अभी भी जो स्टाइल है वो पुराना एग्रीकल्चर स्टाइल है, वो अब बहुत चेंज आ गई है, बहुत चेंज आ चुकी है, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू द एडवांस्ड कंट्रीज हम बहुत पीछे हैं। पॉपुलेशन प्रेशर हमारी, यानी हमें जो डेवलपमेंट हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके बाद डेवलपमेंट के टारगेट्स हमें सेट करने हैं, उसकी रीजन क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है, ग्रोथ उतनी नहीं है, उसकी वजह से पॉवर्टी आ रही है। सोशल एक्सक्लूजन एंड जेंडर इनइक्वालिटी हमारा ये, इस पे काफी प्रोग्राम चल चुके हैं, सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत भी ये वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इश्यूज पे बहुत काम हो चुका है। लो रेट ऑफ सेविंग्स, ये अभी मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सेशन में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ ऑफिस, तो अभी हम इस सेशन ले रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्ट करती हूँ शेयर करता हूँ। जी बात नहीं समझ आई, कौन बोला क्या बोला? जी जी, अच्छा, लो रेट ऑफ सेविंग्स, जिन मुल्कों में जो सेविंग रेट कम होता है उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ये एक इंडिकेटर है लेवल ऑफ सेविंग पे। जब सेविंग होगी तो फिर आपके एवेन्यूज खुलते हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुल्क की जो है डेवलपमेंट बैकवर्ड होने की। लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा मुल्क इस वक्त इस चीज से कि एजुकेटेड लोकल लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको सूटेबल जॉब्स नहीं मिल रही, विद द कंसिक्वेंट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये फैक्टर्स हैं जिनको हमें फोकस करने की जरूरत है। ये हम पहले कर चुके हैं बात। अब ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप तवज्जो देंगे कि नीड्स, हमें डेवलपमेंट प्लानिंग, हमें प्रोजेक्ट्स क्यों बनाने पड़ते हैं, हमें 5 ईयर प्लान क्यों बनाने पड़ते हैं, हमें प्रोग्राम्स क्यों बनाने पड़ते हैं। इसके लिए क्या है कि इस प्लान हम इसलिए बनाते हैं, इट इट टेक्स केयर ऑफ द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। ये जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ये पूरे कंट्री के लिए करते हैं, और कहीं रीजनल प्लानिंग कर रहे हैं तो उस रीजन के लिए कर रहे होते हैं, और उसे हम किसी जगह बताएंगे कि वो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे, इंक्लूडिंग वुमेन, गर्ल्स एंड द मोस्ट वल्नरेबल। इसका ये डेवलपमेंट प्लानिंग का ये फायदा है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर डिजायरेबल डायरेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी।
जब आप इन चीजों को सामने रखते हैं तो फिर आपको ये पता लगता है हमने कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करनी है, किन किन एरियाज को फोकस करना है, वेटेज देनी है। इट फैसिलिटेट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ताकि सब उससे शेयर कर सकें। सर्व्स एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। जब ये चीजें सेट हो जाती हैं फिर आपका काम, क्या कहते हैं इसे, एक इक्विलिब्रियम अडॉप्ट कर लेता है, वो चल पड़ता है। इनर्शिया जो है वो टूट जाता है उसका और वो चल पड़ता है। प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड देयर बाय अवॉइड्स द वेस्ट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। यानी जब आप डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है ताकि मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन हो सके और किसी किस्म का जो वेस्ट, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दरमियान में आकर रह जाते हैं और फेल हो जाते हैं और नहीं चल पाते। क्यों? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आपकी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट की प्रॉपर नहीं हो पाती। हेल्प्स इन कोपिंग विद द मेजर इकोनॉमिक्स चेंजेस, facilitates the optimum utilization of a country's resources। ये सिस्टम डेवलप होने की वजह से enables the economy to look ahead and thereby to lay the foundation for long term growth। जब ये सारे काम होते हैं तो फिर पहले आप 1 साल की प्लानिंग करते हैं, फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि 2 साल की प्लानिंग करते हैं, फिर इस काबिल हो जाते हैं कि 4 साल की प्लानिंग, फिर 5 साल की। तो हम नॉर्मली पाकिस्तान में जो है 5 ईयर प्लान चलते हैं, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके 15-15 साल के प्लान चलते हैं, 50-50 साल के प्लान चलते हैं, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज। उसके बगैर तो नहीं पॉसिबल। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अब ये हमने क्योंकि बात प्लानिंग की कर रहे हैं, हम अब देखेंगे कि इसकी प्लानिंग की टाइप्स कितनी है। तो ये नॉर्मली इसे हम बाइफेट करते हैं 2 एरिया में। एक है मैक्रो लेवल प्लानिंग और दूसरा है माइक्रो लेवल प्लानिंग। अब हमने इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग से। वैसे तो अंग्रेजी के लफ्ज है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज मेंट बाय मैक्रो एंड एवरीबॉडी नोज व्हाट इज बाय माइक्रो, लेकिन यहाँ जो है जरा एंटायरली डिफरेंट, इट इज अ स्लाइडली डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। मैक्रो मीन्स एज ए होल, एज ए लार्ज स्केल। वैसे तो मैक्रो का मतलब बड़े का है, लेकिन यहाँ जब हम इसमें इस प्लानिंग के टर्मिनोलॉजीज में बात कर रहे होते हैं तो मैक्रो मीन्स एज ए होल और एट ए लार्ज स्केल। जब आप कहते हो कि वी हैव टू रेज द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री फ्रॉम 60% to 100% or the 80% in coming 5 years, तो इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन अगर आप ऐसा हो जाए कि एक आदमी कहता है कि जी मेरा एक बच्चा जो है वो डॉक्टर होगा, एक बच्चा जो है मेरा इंजीनियर होगा, तो आप कहाँ गए? इंडिविजुअल पे आ गए। तो जब आप इस लास्ट यूनिट पे आके उसकी डेवलपमेंट का काम करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो लेवल प्लानिंग। और जब वो माइक्रो पे आ जाते हैं तो फिर हम प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। तो अब इसकी देखें, अब सबसे पहले जो मैक्रो लेवल प्लानिंग का जो पहला पॉइंट है वो है विजन। विजन, विजन से मतलब है आप लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं कि आपका मुल्क कहाँ से कहाँ जाए। जैसे नॉर्मली हमारे मुआशरे में, इन आवर सोसाइटी, हम कहते हैं ए मेरा जड़ा बच्चा है ना ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर उसने 25-26 साल के बाद बनना है, या उसको स्पेशलाइज करा के उसने सर्जन बनाना है बहुत बड़ा, तो वो 25-26 साल चाहिए। क्या है ये आज वो ये जहन में एक नुक्ता रख के बैठे हैं कि आई वांट टू सी हिम एज ए सर्जन, ए रेनाउंड सर्जन ऑफ द कंट्री। तो ये क्या, इसे हम कहते हैं विजन। वो डॉक्टर इकबाल के यहाँ जिसे तखय्युल कहा गया, ये आप सेट करते हो। और ये काम है लीडर्स का। लीडर्स ये सोचते हैं हम अगले आने वाले 100 साल में अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जब भुट्टो की हुकूमत आई, भुट्टो अदरवाइज तो कंट्रोवर्शियल है जैसे भी है, लेकिन उसका एक विजन था कि पाकिस्तान शुड बी एटॉमिक पावर। उसका ये विजन था और वो उसने अपनी जिंदगी में शायद नहीं देखा,
लेकिन बाद में वो उसके हो गए। तो अब जब विजन हम कर लेते हैं तो हम उसके रोशनी में बनाते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। नॉर्मली द पर्सपेक्टिव प्लान्स आर फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स। पाकिस्तान में 15-15 साल के प्लान बनते हैं। सबसे पहला एक प्लान अयूब खान ने बनाया था 15 से 80 का, लेकिन वो कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद शौकत अजीज ने भी प्लान बनाया, फिर एहसन इकबाल के भी 15 साल के प्लान आते हैं। जब ये पर्सपेक्टिव प्लान हम बना लेते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो जरा छोटी है। तो हमारी इकोनॉमी हमें अलाउ करती है कि हम 5 साल से ज्यादा का प्लान नहीं कर सकते। वहां पर इतने पैसे नहीं है, बल्कि हम तो जो 5 साल का डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं 5 ईयर प्लान, उसमें रिसोर्सेज भी हार्डली 3 साल या 3.5 साल के अवेलेबल होते हैं हमारे पास। हम बाकी लोन से और इधर उधर से उसे करके प्लान को करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक और है जो अब हमारे पाकिस्तान में इसका कोई यूज नहीं है या हम नहीं करते। अयूब खान के जमाने में एक दफा एक रोलिंग प्लान बना था फॉर 3 ईयर्स। और रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं, हम 3 साल का प्लान बना लेते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टारगेट सारे रख लेते हैं, 1 साल को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। उसकी रिव्यू की रोशनी में जो शॉर्टफॉल्स हैं, हमारी जो कमियां कोताहियां हैं, उनको अगले साल में इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐड करके चेंज करके। इसलिए हम कहते हैं इसे रोलिंग प्लान्स। और चलते रहे। नो डाउट इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल, आपके लॉसेस कम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। हम क्या करते हैं, 5 साल का मंसूबा बनाते हैं, हर साल उसे रिव्यू करते हैं और फिर उसके अगले साल में आ जाते हैं, फिर उसके तीसरे साल में आते हैं, फिर अगले 5 साल की जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में अगला 5 ईयर प्लान बना के उसमें जो चेंजेस करना चाहे करते हैं। लेकिन हम साल के बाद नहीं कर पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर उसके बाद एक जो है, हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं 5 ईयर प्लान्स। दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका जिक्र आएगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 साल का प्लान बनाना। तो उसके बाद एनुअल प्लान्स, हम 5 ईयर प्लान को 5 साल के लिए हैं, एक एक साल पे तोड़ देते हैं। यानी 5 साल के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम तोड़ के हर साल के उस पर ले आते हैं। फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल कि 5 ईयर प्लान में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी वी हैव टू एस्टेब्लिश 100 कॉलेजेस इन द कमिंग 5 ईयर्स। तो जब आप एनुअल प्लानिंग कर रहे होंगे उसकी बैठे हुए, तो आपके 20 कॉलेजेस आए। ये सिंपल वे, इसी तरह ये करते हैं इसमें। तो ये जो एनुअल प्लान प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना के देता है, उसकी रोशनी में हर प्रोविंस जो है, हर प्रोविंस वो बनाता है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोविंशियल लेवल पे, और फेडरल गवर्नमेंट बनाती है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ना मतलब एक ही है दोनों का। फेडरल इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, और जो हम एडीपी कहते हैं ये हमारी जनरल लैंग्वेज या पॉपुलेशन की उसमें समझाने। तामीर वतन प्रोग्राम भी इसका नाम किसी वक्त में रहा। ये पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से चलते रहते हैं। अब एनुअल प्लान्स में जब ये 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट्स को तोड़ के ईयर वाइज लाते हैं, तो ये अगर कोई हमसे पूछे कि एडीपी क्या चीज है, एडीपी है क्या चीज, क्योंकि 5 ईयर प्लान का मैंने एक बात शायद 5 ईयर प्लान इज व्हाट, इट इज व्हाट ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इट इज पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड लिस्ट ऑफ ए मेजर प्रोजेक्ट्स। इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं। ये पॉलिसी देते हैं गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट लिटरेसी को कहाँ से कहाँ लेके जाने चाहती है, एनर्जी का क्या लेवल है, सब इसे कहाँ से कहाँ लेना चाहती है। आज जो वो है क्या कहते हैं इसे, वाटर रिजर्वायर्स कितने हैं, हम अगले सालों में कितना लेके जाना चाहते हैं, इस किस्म की पॉलिसीज। पैसे कैसे मैनेज करेंगे 5 सालों में, ये सारा जो है ये 5 ईयर प्लान का हिस्सा है। लेकिन जब हम एडीपी पे आते हैं, यानी एनुअल प्लान पे आते हैं, एडीपी में आते हैं, तो हम कहेंगे एडीपी इज व्हाट, ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, सेक्टर वाइज ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए 1 ईयर। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एलोकेशंस होती हैं। तो अगर कभी एडीपी की किताब, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है
वो विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट बनता है। पीएटी डिपार्टमेंट में मैंने अपनी इस सर्विस के दौरान 3 एडीपी बनाए थे जब मैं इस सेक्टर पे अपॉइंटेड था। तो वो उसमें एक प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन है, कहाँ कहाँ आपके कॉलेजेस खुलेंगे, कहाँ कहाँ आप यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, वो सारी उसकी डिटेल, उसकी फंडिंग होती है। फिर ये इसकी वो फेजिंग भी होती है कि ये कॉलेज 3 साल में बनेगा, 4 साल में बनेगा, तो एनुअल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो स्विच ओवर करेगा अगले साल में, फिर 1 साल जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जब एडीपी में आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो देन यू नीड टू डेवलप ए प्रोजेक्ट, वो माइक्रो लेवल है। तो फिर जब किसी प्रोफेसर को, खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एमपीडीडी में मैंने 13.5 साल प्रोजेक्ट प्लानिंग पे, आई वाज देयर सीनियर इंस्ट्रक्टर प्लानिंग, ये पढ़ाया है। एजुकेशन के लोग का क्योंकि एरिया अलग है, वो टीचिंग लाइन से है, जब उनको किसी लेक्चरर को, किसी प्रोफेसर को, प्रोफेसर तो बहुत सीनियर उसके लेवल पे तो नहीं होता, असिस्टेंट प्रोफेसर को असाइनमेंट मिलती है ना कि आप ये प्रोजेक्ट डेवलप करें, तो उनके लिए मुश्किल बन जाती है। मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की 29 प्रोफेसर को पढ़ाया था, तो मुझे अंदाजा हुआ था कि मुश्किल है इनके लिए। अपने फील्ड में दे आर एक्सीलेंट, लेकिन इधर प्रोजेक्ट प्लानिंग की साइड पे इतना उनकी ओपनिंग नहीं है। तो आज ये कोशिश है, गो इससे आप एक्सपर्ट तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक एक खाका आपके सामने आ जाएगा कि हम प्लानिंग में करते क्या है। अब प्रोजेक्ट आ गया, अब हमें क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज मेंट बाय ए प्रोजेक्ट, व्हाट इज मेंट बाय ए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होता क्या है। तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। मैं जी अपना घर बनाना है, हमारा अपना घर होना चाहिए, तो आप उसके लिए सोच विचार शुरू करते करते रिसोर्स डेवलप करते हैं, फिर कहते हैं कि जिस जमीन का टुकड़ा लेना है, ये नोट करने वाली चीजें हैं। We need a piece of a land, we need resources, we have to design the project, कि हमने करना क्या, उसमें कितने रिसोर्स हैं, कितने कमरे बनाने हैं, कितनी चीजें उगानी है, क्या फैसिलिटीज उसमें डालनी, ये सारी जो स्टडी है ये प्रोजेक्ट्स के प्रीव्यू में आती है। हम ये देखना, हम यहाँ देख लेते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब ये एक पता नहीं अब जिंदा होगा कि नहीं, मुझे इस बंदे के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, जे प्राइस गिटिंगर। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर इन ईडीआई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन, नाउ नोन एज वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट। ये उसके प्रोफेसर थे। ये एक यूएनडीपी के प्रोजेक्ट में, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में ये पाकिस्तान आए थे, तो इन्होंने एक एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट किया था 2 साल का। तो मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। इनकी किताब है एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें 2 जगह ये प्रोजेक्ट्स को अपनी वर्डिंग में इस तरह लिखते हैं, प्रोजेक्ट्स आर द कटिंग एज ऑफ डेवलपमेंट। यानी प्रोजेक्ट, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनते हैं तो क्या होता है, फिर डेवलपमेंट आती है, फिर मुख्तलिफ एरिया में, एजुकेशन में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हेल्थ में बन रहे हैं, रोड एंड ब्रिजेस में बन रहे हैं, वाटर एंड एनर्जी में बन रहे हैं, वो उसकी सारा कुछ सब अप करते हैं तो हम कहते हैं डेवलपमेंट है। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो ब्रिक्स का काम करते हैं। ऐसी प्रोजेक्ट्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये ब्रिक्स का, ब्लॉक्स का, कराची में ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं ना बिल्डिंग के लिए, ये उसका ये रोल प्ले करते हैं। ये सिंपल वे में जे प्राइस गिटिंगर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। व्हाट इज मेंट बाय अ प्रोजेक्ट। अब हम प्रोजेक्ट की डेफिनेशंस को देख लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। मुख्तलिफ ऑथर्स, मुख्तलिफ लोगों ने सेम चीज को मुख्तलिफ स्टाइल में बयान किया। मैं 1-2 डेफिनेशंस आपको इसलिए दिखाता हूँ। नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी where we invest our capital in expectation of returns, कि हमें वहां इन्वेस्टमेंट करने के बाद को रिजल्ट मिलेगा, को बेनिफिट्स मिलेंगे। अब प्रोजेक्ट्स भी कई नेचर के हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन को देखें, प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ प्लान्ड
प्री डिटरमिन्ड, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना पहले से ही, प्री कंसीव्ड इंटर related dependent activities aimed at achieving the defined objectives, goals, ये हम पहले से ही कर लेंगे, हमने ये कुछ करना है. By producing specified outputs within a given time frame, cost and place. Okay, जब प्रोजेक्ट की एक इम्प्लीमेंटेशन प्लेस भी होगी ना, कहाँ करना है, किस एनवायरनमेंट में कहाँ जाके करना है, ये एक डेफिनेशन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई कि प्रोजेक्ट होता क्या है. लेकिन इसे, ये है सिंपल वे में, लेकिन इसे हम देखते हैं कि जरा थोड़ा सा आगे चल के कि ए प्रोजेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन, ये जरा थोड़ी सी बेहतर डेफिनेशन है, और भी आगे आएंगी. ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पूल टूगेदर. ह्यूमन से मुराद है लेबर आपको चाहिए होती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल लेबर, और नॉन ह्यूमन मशीनरी वगैरह, मटेरियल वगैरह. तो फिर आपका प्रोजेक्ट है पूल टुगेदर. पूल का मतलब है इकट्ठे करना उनको, टुगेदर इन ए टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए स्पेसिफिक पर्पज. ये टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन मुराद है जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन होती है तो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाते हो पहले, और वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है, इसलिए उसे हम कहते हैं टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन. अब देखें, हम प्रोजेक्ट्स को ना इसकी नेचर को देखते हुए मेजर वे में हम दो में करते हैं, अदरवाइज ये तीन में डिवाइड होता है. दो में हम इसे डिवाइड करते हैं. एक वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमें रिटर्न आता है टेंजिबल. लफ्ज नोट करने वाला है टेंजिबल बेनिफिट्स. तो हम कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स वेयर वी इन्वेस्ट आवर कैपिटल and get the benefits in terms of money, in terms of tangible benefits. जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर में जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टेंजिबल बेनिफिट आते हैं. आपने गंदम बोई, गंदम काट ली, गन्ना शुगर केन बोया, शुगर केन ले लिया, जब उसको आपने कन्वर्ट किया तो वो मनी टर्म में मेजरमेंट हो जाती है उसकी. सोशल प्रोजेक्ट्स, अब सोशल प्रोजेक्ट्स वो हैं where we invest our capital but we get the benefits, इनटेंजिबल बेनिफिट्स. इनटेंजिबल बेनिफिट्स वो होते हैं जिनको हम मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ एग्जांपल, आपने एक आदमी को एजुकेशन देकर डॉक्टर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, कैसे आप करेंगे, कितने पैसे का ये प्रोफेसर है, यू कांट मेजर. हाँ, उसकी जो वो है, क्या कहते हैं उसे, उसकी जो प्रोजेक्शन वो करेगा, वो जो सर्विसेज रेंडर करेगा, वहां से आप मेजर करोगे कि इस बंदे की में क्या कैपेबिलिटीज हैं. लेकिन उसको मनी टर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बेनिफिट्स को आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ मनी, वी से सोशल प्रोजेक्ट. आपका जितना ये एरिया एजुकेशन का है, जितना सोशल वेलफेयर का एरिया है, आपका हेल्थ का जितना एरिया है, दीज और आर लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे एरियाज ऐसे जो सोशल इन नेचर है. प्रोडक्टिव जितना ये एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, इंडस्ट्री है, ये सारे प्रोडक्टिव एरियाज हैं. यहाँ हम इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन करते हैं और उससे गवर्नमेंट का जीडीपी बढ़ता है. अब मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. A proposal for investment with the definite aim of producing a flow of output, यानी आप पैसे लगा के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी आउटपुट आएगी, वहां आउटपुट आएगी और टेंजिबल आउटपुट आएगी. अब आप देखें ये सोशल प्रोजेक्ट का कैसे कहता है, ए प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट टू डेवलप फैसिलिटीज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. अब इसको जरा समझना थोड़ा सा. अब क्या करते हैं आप, बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं तो क्या होता है, फीस तो आप भरते हैं. बच्चे को कि आप जिस दिन बच्चे को स्कूल में डाला उसके 2 महीने के बाद अगर उसको असेस करें तो आप समझते हो कि ABCD आ गई है. मनी टर्म में तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये समझ लेते हैं आप
इसके अंदर ये कैपेबिलिटीज आ गई है कि ये अब अल्फाबेट्स को समझता है। फॉर एग्जाम्पल जरा लार्ज स्केल पे से देख लेते हैं। आपके पास सरमाया है, आपने एक वॉशिंग स्टेशन खोल लिया, अब गाड़ी वहां आती है, आप क्या करते हैं, उसे सर्विसेज देते हैं, गाड़ी उसकी साफ करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सर्विसेज, ऐसे प्रोजेक्ट को हम कहते हैं सोशल प्रोजेक्ट, जहां आप सर्विसेज रेंडर करते हैं। इसका इनडायरेक्टली मेजरमेंट आप कर लेते हैं बेनिफिट को, कि आपने सर्विस चार्जेस, जो सर्विसेज देने के बाद पैसे कितने अर्न किए, बट डायरेक्टली इट इज ए सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट। ये तो हो गई। अच्छा जी, अब जो है ना, लास्ट में मैं आपको ये एक दिखाना पसंद करूंगा। जे प्राइस गिटिंगर की किताब जो मैंने आपको बताई, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आज भी वो मशहूर किताब है। उसके अंदर जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है, उस पर ये एक मेरी नजर में कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है प्रोजेक्ट के बारे में। जो हम पीछे अभी तक देखते आए, उसकी रोशनी में इसे देखने की कोशिश कीजिए। ए प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी ऑन विच वी विल स्पेंड मनी, कैपिटल की बजाय सिंपल वे में। इसकी किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप पढ़ते चले जाएं, आप रुकेंगे कहीं नहीं। वेरी सिंपल इंग्लिश एंड वेरी, बड़ा बड़ा क्लियर है। स्पेंड मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स कहते हैं बेनिफिट्स को, एंड विच लॉजिकली सीम्स टू लेंड इटसेल्फ टू प्लानिंग। यानी जब आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा प्लानिंग प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। फिर आप फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, किसके फाइनेंसेस कैसे होंगे, यू अरेंज, यू मेक एफर्ट्स फॉर अरेंजिंग द कैपिटल एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये इसका तीसरा फेज बनता है एज ए यूनिट। वो जैसे टेम्परेरी यूनिट की बात हमने की, एज ए यूनिट इट इज ए, ये नोट करने वाली बात है, it is a specific activity with a specific starting point। ये अब प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो अपने परफॉर्मेंस डेवलप किए हैं ना, उस पर ये पाबंदी कर दी है, पहले नहीं हुआ करती थी, कि प्रोजेक्ट किस डेट को शुरू होगा और किस डेट को फिनिश होगा। और इसको बड़ा प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें प्रोजेक्ट्स में अडॉप्ट किया जाता है, ताकि जो फंड्स जितने आए हैं उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। जो साल में आपको पैसे एलोकेट हुए, वो आपके पैसे फुल्ली यूटिलाइज हो, और वो पैसे किसी सूरत में भी लैप्स ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, लिटिगेशन हो जाती है, हमारे यहाँ पैसे कैपेबिलिटी नहीं है टू यूटिलाइज द फंड्स। वो हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट तो बड़ा एफिशिएंट है, जितने दे दो पैसे उतने ही कम है। लेकिन जो है, तो हम क्या कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट होगा, एंड ए स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट इंटेंडेड टू accomplish a specific object। यानी ऑब्जेक्ट से मुराद ये ऑब्जेक्टिव है जो आपने करना है। दिस इज व्हाट ए वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन टू एक्सप्लेन ए, ये जो टेक्निकली एंगल से अगर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को देखें, दिस इज व्हाट ए वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन। जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमने कर लिया प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स की, हमने पहले ही कर लिया है कि प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स, ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, फिजिकल गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, ये इनके अंदर जो आप इनपुट्स डालते हैं और इनपुट की शक्ल में निकलता है। सोशल बेनिफिट्स भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। एक तीसरी किस्म है इसमें, वो है प्रोजेक्ट्स विच फॉल इन दी प्री इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। ये लफ्ज, ये ऐसे पता नहीं कहाँ से आ गया, कैटेगरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। हम क्या करते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इफ ए प्रोजेक्ट एक्सीड्स, यानी प्रोजेक्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेड, इफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज
exceeding the limit of a 500 million, then first you have to go to conduct a survey and you have to prepare a feasibility report in order to test the viability of the project, कि ये project feasible है भी कि नहीं है. उसमें कुछ preliminary, जैसे स्कूल के projects हैं, preliminary feasibility होती है, आप जाते हो साइट देखते हो, इधर देखते हो, उधर पैसे की गवर्नमेंट. लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, यूनिवर्सिटी नॉर्मली 5 से ऊपर की साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल. अब मैंने किसी जमाने में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का एक PC1 बनाया था. उन्होंने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को अगले 4 एरियाज में तकसीम कर दिया. ये 2019 में मैंने उनका एक PC1 डेवलप करके दिया था और वो बिल्डिंग भी खड़ी हो गई. ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 5 साल से ऊपर बढ़ जाते हैं. तो इनको ये देखने के लिए कि आने वाले वक्त में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको मतलब है वो प्रोजेक्ट चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, लोगों का ट्रेंड होगा कि नहीं है, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है और वो बनती है प्रोफार्मा है, उसे हम नॉर्मली कहते हैं PC2. वो देखेंगे आगे. तो ये जो है ये तीसरी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट जो है कैटेगरी के हवाले से. अब एक जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है वो है प्रोजेक्ट साइकिल. प्रोजेक्ट स्टार्ट होके फिर 1 साल के बाद नए सिरे से दोबारा वहां आ जाता है, या प्रोजेक्ट जब अपने मुख्तलिफ फेजेस से गुजर के आखिर फिर आ जाता है दोबारा, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट साइकिल. इसके जो एरियाज हैं ये आपके सामने नजर आ रहे हैं. आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, अप्रेजल, अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन. जब एवेल्यूएशन होती है तो इसके रिजल्ट जो आते हैं उसकी रोशनी में जो आपके इश्यूज सामने आते हैं, फिर नए सिरे से आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उसका ये सिस्टम चलता रहता है. लिहाजा हम इसको कहते हैं प्रोजेक्ट साइकिल. इसके ये 5 फेजेस हैं. तो अब हम होता क्या है कि हम वी फेस ए प्रॉब्लम, हम फेस प्रॉब्लम एंड वी स्टार्ट थिंकिंग. हमारा थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो फिर हम कहते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम है ना, ये आपके दिमाग को स्ट्राइक करती है चीजें कि हम अगर ऐसे कर लें तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लें तो ये हो जाएगा. मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि नॉर्मली हिली एरियाज में देखा होगा कि पहाड़ी एरियाज में चश्मों का पानी होता है जो ख्वातीन नॉर्मली ख्वातीन वहां से पानी लेके आती हैं नीचे. ऑन दैट प्रॉब्लम टू दी कम्युनिटी, क्योंकि ख्वातीन के जो अल्लाह ने जिस तरह उनको बायोलॉजिकली बनाया है, उनकी हैवी, बहुत हैवी, फिजिकली हैवी काम करने की वो नहीं है, वो मर्दों में ही है. लेकिन हमारे यहाँ ये एक जो रोल सोसाइटी ने रोल दे दिया, वहां की सोसाइटी ने, तो वो पानी ऊपर से 4-4, 5-5 मटके भर के लाती हैं एंड दे फेस द हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो एक आदमी है वो ये सोचता है कि यार इस पानी को किसी तरह हम प्लेन एरिया में ले आए तो ये औरतों का मसला हल हो सकता है. मैं एग्जांपल कोट करूं तो वो कंसल्टेशन होती है, इंजीनियर से मिलते हैं, पब्लिक हेल्थ वालों के पास जाके कहते हैं कि जी यकीन है हो सकता है. तो वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, जहां चश्मा है वहां हम एक टैंक बना लेंगे, तो टैंक में पानी स्टोर हो जाया करेगा, फिर वहां से हम पाइपिंग करके प्लेन एरियाज में ले आएंगे और उस प्लेन एरिया में फिर वो लगा देंगे टेप्स, टूटियां जिसे कहते हैं. तो ये ख्वातीन यहीं से अपने मटके भर लिया करेंगे, इन्हें ज्यादा लोड उठाने की जरूरत नहीं पेश आने. तो नॉर्मली अगर हालात ज्यादा डिस्टर्ब ना हो तो ये बड़ा फिजिबल प्रपोजल है. और ये होता है तो क्या हुआ, इसको ये जो आइडिया स्ट्राइक किया कि वी कैन develop a tank there and we fetch water through pipes. ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, इसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. जो आपके माइंड को स्ट्राइक करती है, आपके सोच और विचार में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो आइडियाज आपके पास आते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. जब ये आइडेंटिफिकेशन जो होती है तो फिर आपका ये होता है कि कैसे करें अब इसे. तो उसमें गवर्नमेंट में आपकी जरूरत है कि आप एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएं, और गवर्नमेंट में वो डॉक्यूमेंट जो बनता है वो बनता है PC1, प्लानिंग कमीशन प्रोफार्मा 1. ये आगे हमने देखना है अभी.
तो वो इसे हम नॉर्मली कहते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट हम करेंगे तो पीछे बन कहेंगे। तो उसमें आप जब प्रिपरेशन में आते हैं तो आप वहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि जनाब एक टैंक बनाना है, उसमें कितनी ईंट लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितनी कंक्रीट लगेगी, पाइपिंग कितनी लगेगी, पाइपिंग किस साइज की लगेगी, ये सारी स्पेसिफिकेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उसकी फिर वो क्या हो जाता है, कॉस्टिंग कर लेते हैं। कॉस्टिंग करने के बाद आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है, इस इतनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। तो अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर में, इवन प्राइवेट सेक्टर इज मोर सेंसिटिव। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, हम करते हैं उस प्रोजेक्ट की अप्रेजल। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये हम जितना पैसा यहाँ लगाएंगे और उसके ये जो हम एक सिस्टम इनको देंगे, क्या फिजिबल है। हो सकता है कि आप हैवी अमाउंट लगाने के बाद उस प्रोजेक्ट कर लें, लोग वहां पसंद ही ना करें पानी वहां से लेना। वो वैसे ये एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है ख्वातीन के लिए आप कर रहे हो, लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फिजिबल है कि नहीं। वहां आपको पता लगे वहां के करते धरते जो उनके घर वालों को पानी आता है, गरीब आदमी को तो बारी नहीं मिलती वहां टेप से पानी भरने की। ये इस एंगल से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये जो है प्रोजेक्ट, ये अप्रेजल करने के बाद प्रोजेक्ट, इसे प्रोजेक्ट एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें आप दो किस्म के फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, एक इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। और ये तो वैसे सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हम इसकी पॉपुलेशन के सामने रख के एक एनालिसिस कर सकते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट हैं, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट हैं, लाइफ स्टॉक के प्रोजेक्ट्स हैं, फिशरीज के प्रोजेक्ट, वहां हम जब अप्रेजल करते हैं तो हम वहां बाकायदा डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करके उसके टूल्स हैं, एक को कहते हैं बीसीआर, बेनिफिट कॉस्ट रेशो। हम कहते हैं एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं और एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है। इफ द बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट, वो एक लफ्ज होता है डिस्काउंटेड, उस फॉर्म में करते हैं। अब यहाँ तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इफ द बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट, वी से द प्रोजेक्ट इज अ वायबल। और अगर पीसीआर लेस देन 1 हो जाए, यानी देखें अगर बेनिफिट्स और कॉस्ट बराबर हो तो 1 आएगा जब डिवाइड करेंगे। और अगर बेनिफिट ज्यादा है तो बेनिफिशियल है, और बेनिफिट्स कम है तो फिर ये लेस देन 1 हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहता। अगर वायबल हो तो फिर गवर्नमेंट एक सिग्नल देती है इम्प्लीमेंटेशन का। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्शन में आता है अगर ये इस किस्म का काम जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, इम्प्लीमेंटेशन इनके थ्रू होती है। एजुकेशन जो है, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें जो एकेडमिक एरिया है वो तो डिपार्टमेंट ही करता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट है या एजुकेशन के अंदर अपना कोई सिस्टम है कंस्ट्रक्शन का, वो उसके हिसाब से चलते हैं। अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमने ओरिजिनली PC1 बनाया था, जो कुछ उसमें रखा था, क्या उसके मुताबिक ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई। इसे हम कहते हैं एवेल्युएशन, एवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब होता क्या है कि आप लोग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट या एवेल्युएशन रिपोर्ट। वो बनती है PC4 पे। और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि PC4 क्या चीज है, क्योंकि जब तक PC4 नहीं बनता आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में नहीं जाता। तो मैं, क्योंकि इस पे मैं 3 साल 3.5 साल मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल एवेल्युएशन कमेटी रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह ये एवेल्युएशन में आके ना बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि ओरिजिनली जैसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था वैसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारी एंड्रेंसेस आ जाती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं कि आपका प्रोजेक्ट नॉन डेवलपमेंट को नहीं, वो डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट को नहीं जाता है। यानी नॉन डेवलपमेंट को जाने से मुराद क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं होता और रेगुलर बजट का हिस्सा नहीं बनता और फिर प्रोजेक्ट में मसाइल आते हैं। तो लिहाजा एवेल्युएशन जो है, इसमें PC4 बनाना, मैंने अपनी इस एवेल्युएशन मेंबर, बीइंग मेंबर ऑफ द एवेल्युएशन कमेटी, ये देखा कि लोग को प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है 4-4 5-5 साल एवेल्युएशन रिपोर्ट नहीं बनाते वो।
एवेल्युएशन भी फिर दो किस्म की होती है। एक होती है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, एक होती है इम्पैक्ट एवेल्युएशन। तो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन तो सिर्फ इतनी है कि स्कूल बनाना है, स्कूल बना दिया। इम्पैक्ट एवेल्युएशन ये है कि आप 5-6 साल के बाद ये देखते हो कि स्कूल या कॉलेज इस पर्पस के लिए बनाया था, यानी टू रेज द लिटरेसी, वो भी इम्पैक्ट आया कि नहीं आया। तो वो इस एंगल, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो एवेल्युएशन की रोशनी में हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिर नए नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो ये सिलसिला फिर चलता रहता है। और ये आइडेंटिफिकेशन से लेके एवेल्युएशन तक, फिर आइडेंटिफिकेशन से ये करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोजेक्ट साइकिल। और ये फिर बड़ी डिटेल में इस पे आगे सिलसिला चलता है, बहुत लंबा है। इतने से टाइम में उसका पढ़ाना मुश्किल है। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है कि डेवलपमेंट प्लान्स जो है, ये हम किसी भी एरिया को मैक्रो लेवल पे कंसोलिडेटेड प्रोग्राम्स के तहत हम बनाते हैं। हम पाकिस्तान में 5 साल के लिए इसे लॉन्ग टर्म प्लान्स कहते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स को। कुछ ऐसा होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि प्रोग्राम आपने बना लिया कि उसके अंदर मलेरिया को भी देखना है, आपने वाटर को भी देखना है, आपने एजुकेशन के, वो एक ऐसे प्रोग्राम बन जाते हैं। उसे हम कहते हैं, जब किसी एक प्रोजेक्ट में ओरिजिनली होता है, ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारे एरियाज को आप कवर कर रहे हैं, तो उसे हम फिर प्रोग्राम कह देते हैं। और जब एक ही एरिया को कवर कर रहे हो तो हम उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट को हम डिटेल में देख चुके हैं पहले। अब व्हाट आर द वेरियस व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि हमारे, हाँ, ये कैसे सामने आते हैं। ये मैंने 10-11 एरियाज आइडेंटिफाई किए। मैं अब इस पे जरा थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसके अलावा वेरियस हो सकते हैं, ये इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एरिया। एरिया की रिक्वायरमेंट, उनकी बेसिक नीड्स के मुताबिक होगा। अब हम अमूमन हमारे यहाँ प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, हमारे एडीपी में जो प्रोजेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स इंडिकेटेड इन द नेशनल प्लान्स। हम 5 ईयर प्लान में कहते हैं ना कि लिटरेसी को हमने यहाँ से यहाँ लेके जाना है, इतने कॉलेजेस एस्टेब्लिश करने हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करनी है। उसकी रोशनी में क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। वो एक ये सोर्स है हमारे पास। फिर लोकल फील्ड नीड्स। अब एक जगह है वहाँ साफ ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं, पानी साफ है ही नहीं, तो हम वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो ह्यू एंड क्राई करते हैं, तभी उसकी रोशनी में प्रोजेक्ट सामने आ जाते हैं। ये एक सोर्स है। फाइंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एनजीओज एक बहुत बड़ा सोर्स है। गवर्नमेंट की टीम्स इंस्पेक्शन करती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, और उसकी रोशनी में लोग हाईलाइट करते हैं। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, वो लिख के भेजते हैं कि जी हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। एनजीओ बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करती है। एनजीओ क्योंकि सोशल प्रॉब्लम से अटैच्ड हैं, तो वो आगे लोगों के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करती हैं, अपने तौर पे प्रोजेक्ट बनाती है, गवर्नमेंट से एड लेने के बाद प्रोजेक्ट बनाती हैं, लोगों के मसाइल हल करती है। सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशंस, फॉर एग्जांपल, कि आप एक जगह पे डिगिंग प्रोसेस शुरू करते हैं गैस के लिए। मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ है। ये आपका जो अटक का एरिया है, तलागंग का एरिया है, और ये पिंड दादन खान है, इसके एरिया में अगर आप जाएं तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे प्लॉट्स की डिगिंग वहाँ कर रहे हैं वो। तो आपने कहा कि यहाँ से गैस निकलेगी। जब आप गैस की ड्रिलिंग करते हैं तो पता लगता है कि यहाँ तो नीचे कोयले की बहुत बड़ी कानें हैं, वो क्या कहते हैं, चूने की बहुत कानें हैं, और इस किस्म के कॉपर बहुत है नीचे। तो आप कर रहे होते हैं गैस के लिए, फिर पता लगता है कि जी यहाँ तो पेट्रोल भी है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सामने आ जाते हैं आपके। तो इसको हम कहते हैं कि सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं, ये भी एक हमारा सोर्स है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट जैसे पीली टैक्सी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी, मकसद था लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना।
ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगा के देती है गवर्नमेंट, तो उस सूरत में प्रोजेक्ट फिर सामने आएंगे। डायरेक्टिव जो है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे केसेस में डायरेक्टिव इशू करती है। डायरेक्टिव इज नॉट ए गुड प्लानिंग सिस्टम। ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक नॉर्मली देखा गया है, नहीं हुआ। एक मिनिस्टर है, उसने आकर डायरेक्टिव इशू करवा दिया, उसके इलाके में उस चीज की जरूरत नहीं है, और उसने वो डायरेक्टर के थ्रू करवा लिया, और बाद में पता लगता है कि उसकी यूटिलाइजेशन कोई नहीं हुई। किसी जमाने में तो गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल बनाए थे, वो ऐसी ऐसी जगह पे बन गए जहां बच्चियां भी नहीं गई, ना टीचर्स गए। बहुत जगह पे रूरल एरिया में कॉलेजेस ऐसी जगह पे बन जाते हैं जहां इतना, क्या कहते हैं, फीडिंग, जो बच्चे, बिल्डिंग बन जाती है, बच्चे इतने नहीं है, तो वो वहाँ का प्रिंसिपल जो है वो मारा मारा फिरता है कि बच्चों को कहीं से अरेंज करें ताकि कॉलेज फंक्शनल हो जाए। रिसोर्स पोटेंशियल, रिसोर्स पोटेंशियल से क्या मुराद? हम कहते हैं, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन एक लफ्ज है पंजाबी का, जिन्ना दे घर दाने उन्हों दे कंबले भी सियाने। यानी जब आपके पास पैसे होते हैं, मनी होती है, कैपिटल, देन यू हैव सो मेनी आइडियाज टू इन्वेस्ट। ये एक बड़ा सोर्स बनता है प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री जोन, फ्री इनकम टैक्स जोन डिक्लेयर कर देती है, बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च वर्क्स, जैसे कि PCSIR है, ये बहुत सारा रिसर्च करने के बाद एक फार्मूला डेवलप कर देती है, उसे कहती है कि जनाब ये फार्मूला करेंगे तो इससे ये बेनिफिट्स आएंगे। लोग वो फार्मूला ले लेते हैं और उससे वो मेडिसिन और टूथपेस्ट और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है इसके बनती हैं और उसके प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, खासतौर पर मेडिसिन। पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, एक सोर्स हमारे पास जो है ये पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का है। जो एडवांस कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका और UK, जापान वगैरह, वहां तो ये बड़ा कामयाब है। लेकिन हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत रेयर, कि किसी पर्पसफुल पर्पस के लिए किसी पॉलिटिशियन ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो। अदरवाइज ये उनकी विशेज ही होती है, कोई इतना कामयाब नहीं। रिजल्ट्स क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये 16 दिसंबर का जो वाकया हुआ है पिशावर का, उसकी रिजल्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट, अब इस एंगल से भी कि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो ये भी देखते हैं कि सिक्योरिटीज के क्या अरेंजमेंट्स है, कोई अगर ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो क्या क्या आपके अरेंजमेंट्स है, उसकी सूरत में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सामने आए। इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, अब ये जो है ना, यूनिसेफ, UNDP, वर्ल्ड बैंक, जायका, नीदरलैंड, इनके, ये जो है ओरिजिनली इनका पर्पस होता है किसी मुल्क की डेवलपमेंट में उनको मदद करना। लेकिन अब इनका भी रोल डिफरेंट हो गया है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन इनको रोल प्ले करते हैं। ये अपना सर्वे करते हैं, अपने सर्वे करने की रोशनी में आपसे कहते हैं कि जनाब आपकी एजुकेशन पुअर है, आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट नहीं है, आपके वाटर शॉर्टेज है, तो आप इन इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको मदद देंगे। उसके भी ये हमसे बहुत कुछ ले जाते हैं। अब ये जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फेडरल गवर्नमेंट में, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका बहुत बड़ा रोल है। जितनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, जितने भी ये परफॉर्म हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो सारी यहाँ से चलती हैं। तो इसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि ये है क्या, इनका क्या रोल है। हमने प्रोजेक्ट्स के उसमें लफ्ज यूज किया था PC1। ये PC हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन, और 1 प्रोफार्मा 1। तो ओरिजिनली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बयान कर दूं कि जो ये प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये अयूब खान जब आया है, इसने इसको 1958 में जब अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश की है, तो उसने सबसे बड़ा काम जो किया ना इस डेवलपमेंट के हवाले से, इसलिए उसका पीरियड डेवलपमेंट के हवाले से
गोल्डन पीरियड ट्रीट होता है, इकोनॉमिस्ट इस बात पे एग्रीड है, उस जमाने में जितना काम हुआ है वो गोल्डन पीरियड है हमारा। तो इनने 58 में एक इदारा एस्टेब्लिश किया, उसका नाम रखा, पहले तो वो डेवलपमेंट, पाकिस्तान बनने के बाद डेवलपमेंट सेल बना, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड बना, इस तरह ये चलते रहे। लेकिन जब 58 में ये बन गया तो अब जरूर शुरू शुरू में ऐसा होता था कि हर आदमी जिसको असाइनमेंट दी जाती थी प्रोजेक्ट बनाने की, वो अपने स्टाइल में ही बनाता था। तो अगर 4 आदमियों ने 4 डिफरेंट एक ही टॉपिक पे कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो हाउ टू कंपेयर, हाउ टू चूज द बेस्ट वन वाज वेरी मच डिफिकल्ट। तो प्लानिंग कमीशन ने जरूरत महसूस की कि कोई हम डिजाइनिंग करें इस तरह की कि प्रोजेक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी आ सके। तो इन्होंने एक प्रोफार्मा डिजाइन किया, उसे हमने कहा सिंगल कंपोजिट प्रोफार्मा, जो 1962 में प्लानिंग कमीशन ने बना के दिया। ये एक ही प्रोफार्मा था एंड दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। लेकिन साथ साथ जब ये तरक्की होती गई तो ये प्रोफार्मा जो है बहुत सारे सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता था। यानी एग्रीकल्चर है, वो एजुकेशन की उस पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता था प्रोफार्मा, मसाइल आते थे। तो फिर प्लानिंग कमीशन ने इस पे काम किया और काम करने के बाद सेक्टर वाइज प्रोफार्मा डेवलप कर दिए। तो पहली दफा 12 पीसीज बनाए इन 1974। 1974 में 12 प्रोफार्मे बनाए और उसके बाद क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ती गई तो ये ऑब्जर्व किया गया कि the industrial projects, agriculture projects, and livestock projects, when they are producing the benefits, they are at the same time creating pollution. और pollution का मतलब है reducing the objectives. तो इसमें फिर ना वो जो एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 85 में, 86 में, उसकी रोशनी में 95 में ये परफॉर्मे रीडिजाइन किए गए और इन रीडिजाइन करके ये 2005 तक रहे। 2005 में मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, तो मुशर्रफ की भी जो जमाने में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस हो रहा था, तो एमएनएस एमपीएस नॉर्मली अंडरस्टैंड नहीं करते इन चीजों को, वो बड़ा चीखे मारते थे कि जी पीसी1 की चीज, पीसी1 क्या चीज है। तो उसने एक डायरेक्शंस जारी की कि द पीसी1 शुड बी द फ्रेंडली विद द पॉलिटिशियंस। ये एक मेरे नजदीक तो नहीं, मैं समझता कि ये कोई अच्छा काम हुआ है, क्योंकि ये उसकी रोशनी में अमेंडमेंट करके शौकत अजीज जो था, क्योंकि इसमें प्लानिंग कमीशन में मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट किया था, इसकी ये प्रोफार्मे जो 2005 में अमेंड होके इन जो ये 14 प्रोफार्मे थे 95 के, इनको मलगामेट करके 3 बना दिए, 3 प्रोफार्मे बना दिए। पहला था, उसे हम कहते हैं PC1 फॉर, ये आगे आएगा, PC1 फॉर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स, PC1 फॉर सोशल नेचर प्रोजेक्ट्स एंड PC1 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ये 3 कैटेगरी कर दी। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, भारत क्योंकि ऑर्डर थे और ये नवंबर में 2005 में नवंबर में इस्लामाबाद प्लानिंग कमीशन में मीटिंग्स हुई थी, इसकी रोशनी में इसकी कुछ शक्ल शेप की। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब PC1 के हवाले से, क्योंकि मेरा बहुत पीछे एक्सपीरियंस था PC1 पढ़ाने का, तो लिहाजा मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये एक हो गया PC1 हम अगले उसमें देख लेंगे। और इसके अलावा ये है 4 और PC1, PC2, PC3, PC4 एंड PC5, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। इस पे एक नजर आप डाल लें। ये हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। जिस बंदे को अगर आप असाइनमेंट देंगे कि जनाब ये कॉलेज का यूनिवर्सिटी का PC1 बना लें, तो वो अब इन चीजों से, इन एरिया से उसको साफ का पड़ेगा। नंबर 1 PC1 which is used for project development. आप कह सकते हैं कि PC1 is a proforma designed by the Planning Commission of Pakistan which is used for the preparation of a project. अब आगे इसकी फिर उन्होंने 2 किस्में कर दी हैं। PC1 फॉर न्यू प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट ऐसा जो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के होते हैं,
वो बीच में जाके आपको वो जरूरत पड़ जाती है उसे रिवाइज करने की। दो रीजंस होती हैं नॉर्मली रिवाइज करने की, एक तो कॉस्ट चेंज हो जाए या ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए। whenever there is a change in objective, तो कास्ट में बढ़े या ना बढ़े, अगर ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ था यू हैव टू रिवाइज द प्रोजेक्ट। मोटी सी बात है। जब ये प्रोजेक्ट की जो कास्ट प्राइस एस्केलेशन की वजह से बढ़े, तो उसमें अगर ये 15% से ऊपर जा रही हो, तो फिर इसकी फ्रेश अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप PC1 फॉर रिवाइज प्रोजेक्ट्स, ये दो किस्म की प्रोजेक्ट कर दिए इन्होंने, एक नए के लिए, एक पुराने जिनकी रिवीजन होगी। तो उस हवाले से आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है उस बंदे को ये दुआ होनी चाहिए कि वेदर हिज प्रोजेक्ट इज अ न्यू वन और ही इज गोइंग टू रिवाइज अ प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो इससे अब Excuse me, Asif sir. Sir, sorry to जी जी disturb you. We have last 15 minutes. आप questions जो है वो chat से ले लीजिएगा अगर किसी का question हुआ तो sir. Thank you sir. ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट जो है इसमें इतना छोटा टाइम दिया है, ये हो जाए तो बड़ी बात है। अब ये है असल में आपके जो एजुकेशन के प्रोफेसर हजरात है ना, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये जो मैंने आप स्टार्ट किया है, क्योंकि इनके लिए मसाइल आते हैं। क्योंकि मैंने तो वहाँ MPDD में बैठ के ये बड़े प्रोफेसर की ट्रेनिंग कराई है। अच्छा जी, अब PC2, अब हम प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपके अगर प्रोजेक्ट्स का 500 मिलियन से कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो यू विल नॉट गो टू इम्प्लीमेंट दी PC1। आप फर्स्ट यू विल गो, आइडियाज आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है कि ये ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो पहले हमने इम्प्लीमेंट किया था वो 500 मिलियन से ज्यादा था, लिहाजा अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस ऑब्जेक्टिव की रोशनी में आप जाते हैं और ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट कितनी निकलेगी। तो आप कहते हैं ये 500 मिलियन से ज्यादा है, देन यू हैव टू प्रिपेयर ए PC2, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की भी दो किस्में, एक प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी है, एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी है। डिटेल जो फिजिबिलिटी है, प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी है, वो आप विजिट्स करने के बाद, जो सीनियर्स लोग हैं विजिट करने के बाद वो अंदाजा कर लेते हैं इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसके इरादे इतने हैं, इसके स्कूल के एरिया या कॉलेजेस के बच्चे यहाँ से आ सकते हैं, पॉपुलेशन बेसिस पे एनालिसिस हो जाता है और फैसिलिटीज कितनी हैं उसकी बेसिस पे हो जाता है। तो PC2 बना लेते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रोजेक्ट वुड बी फिजिबल। लेकिन जब डिटेल फिजिबिलिटी में है, खासतौर पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स, इनको जब हम देखते हैं तो फिर हमें सर्वे करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, प्राइसेस लेनी पड़ती हैं और उसको एनालाइज करने के लिए आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है, जिसके 3 टूल हैं। एक है BCR, NPV, BCR बेनिफिट कॉस्ट रेशो, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये टेक्निक्स हैं और लंबी हैं, इसका मतलब यहाँ इतना ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, अदरवाइज इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू ये हम निकालते हैं, वहां तो हम करते हैं ना बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट, इफ ग्रेटर देन 1 फिजिबल, इफ लेस देन 1 नॉट फिजिबल, इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 1 आपका, आपकी मर्जी है आप इन्वेस्ट करें या ना करें, ये डिपेंड करता है एरियाज पे। अगर आप बलूचिस्तान में है, बैकवर्ड एरिया में, तो आप कहते हैं ठीक है बेनिफिट तो एडिशनल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और एक्टिविटीज जनरेट हो जाएंगी, उसकी रिजल्ट में हो सकता है कि वेलफेयर आ जाए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पैसे रिटर्न करके पैसे में एडिशन नहीं होनी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम वी वांट टू ऐड समथिंग इन द इकोनॉमी, वो नहीं कर सकते तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं। तो डिटेल फिजिबिलिटी की सूरत में आप ये NPV, BCR और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये प्रोजेक्ट्स की डेटे की बेस पे आप निकालते हो कि ये प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होगा, फंक्शनल होगा, तो ये इकोनॉमी में किस परसेंटेज से एडिशन करेगा। ये अब एक लंबा फार्मूला है, उसके तहत हम निकालते हैं और ये करते हैं। अब आपके जैसे प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशन के, एजुकेशन में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है, ये सारी टेक्निक्स लगती हैं प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। तो आपके यहाँ जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं
वहां जो टेक्निक यूज होती है उसे हम कहते हैं, फिर मैं जहन में आता है, मैं वो लफ्ज मेरे जहन में इस वक्त स्ट्राइक कर रहा है। वहां हम ना, क्योंकि हमारी जो बेनिफिट्स हैं वो इंटेंजिबल हैं, हम मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, कॉस्टें मौजूद हैं। आप बिल्डिंग बनाते हो, टीचर्स को तनख्वाह लेते हो, ये बहुत सारे काम करते हो, लेकिन आपके पास वो नहीं है। तो हाँ, उसे हम कहते हैं, तो लफ्ज ऐसा अड़ गया है, चल ये आता है तो फिर मैं जहन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो आप जो है इस प्रोजेक्ट्स पे, वो दूसरी टेक्निक है, उसकी बेसिस पे उसे हम कहते हैं रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट की रैंकिंग कर लेते हैं कि कम से कम पैसा लगा के कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेनिफिट देगा, यानी टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट जहां से आएंगे। हाँ, इसको कहते हैं कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, और लफ्ज आ ही नहीं रहा था मुंह। तो हम जितने सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ये कास्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर पाते, हम कहते हैं कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। हम कास्टें लेते हैं और कास्टों की बेसिस पे ये एनालाइज करते हैं कौन सा प्रोजेक्ट जिस जो मैक्सिमम बेनिफिट, लीस्ट कास्ट मेथड भी कहते हैं इसे, जिसमें कम से कम पैसे लगे और प्रोजेक्ट जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट दे। तो हम इसके दो तरीके कर लेते हैं कि बेनिफिट्स को फिक्स कर लेते हैं, और जो कम से कम कॉस्ट पे प्रोजेक्ट उसे हम फिजिबल डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर हम ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं, वट एवर इज द कॉस्ट। इस सूरत में ये दूसरी टेक्निक हो जाती है, इसकी भी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी है काफी। उसके बाद जब ये हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है ना, तो हम मजबूर हैं ये देखने के लिए कि जितने पैसे दिए जा रहे हैं फॉर ए प्रोजेक्ट वो फुली यूटिलाइज भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि क्या उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है जो हम जिस डायरेक्शन जिस मकासद के तहत हमने किया है। तो हमारा पास एक सिलसिला है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस टूल को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोफार्मा, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफार्मा डिजाइन किया हुआ है, उसे हम कहते हैं PC3। फेडरल गवर्नमेंट में क्वार्टरली है, हमारे यहाँ पंजाब गवर्नमेंट में या अदर प्रोविंसेस में ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये प्रोफार्मा है, इसे हम यूज करते हैं। और इसकी बेसिस पे हम एवोल्यूशन, मैं क्योंकि चीफ मॉनिटरिंग रहा हूँ PND का फॉर 3 इयर्स, तो ये हम महकमों से PC3 पे रिपोर्टें मंगाते थे, कंसोलिडेट करते थे, और फिर ये एक प्रेजेंटेशन चेयरमैन PND बोर्ड, समटाइम चीफ मिनिस्टर के पास भी ये होती थी। उसमें हम उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करते थे जिनके पैसे या तो यूटिलाइज नहीं हो रहे, या प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, या वो प्रोजेक्ट जो बहुत फास्ट जा रहे हैं उनके लिए एडिशन पैसे चाहिए। तो मिड ईयर रिव्यू में हम अमूमन ये काम करते थे, जो प्रोजेक्ट पुअर हैं उनको रोक, उनके लिए पैसे या तो पॉसिबल है तो पैसे देने, नहीं ना उन प्रोजेक्ट को कैप कर देना, और जो फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट है उनको पैसे की डाइवर्शन कर देनी। तो ये था PC3 के थ्रू। और ये हर महकमा जो है अपने हर 10 तारीख तक ये अपने हायर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास जाती हैं रिपोर्टें, वहां से 15-16 तारीख को PND में इकट्ठी हो जाती हैं, वहां से जो चीफ है वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाता है और प्रेजेंटेशन होती है। और एक्शन भी, जहाँ कोई साउंड रीजंस ना हो वहां फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है पीडा के तहत, अगर प्रोजेक्ट सफिशिएंट रीजंस ना हो। अच्छा, जब भी आप एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहता है कि देन यू हैव इमीडिएटली टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट, और वो हम बनाते हैं PC4 पे। और ये PC4 जो है ये हर महकमा मुकम्मल करके PND को भेज देता है अपने सेक्रेटरी के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के थ्रू PND भेज देता है। अब PND में प्रोविंशियल एवेल्युएशन कमेटी है, वो इसको एवेल्युएट आपके PC4 को पढ़ती है, PC1 से कंपेयर करती है, क्योंकि असल सोर्स तो आपका जो है प्रोजेक्ट का वो PC1 है। PC4 में वो है
जैसे वो इम्प्लीमेंट किया गया है तो उसके हम शॉर्ट फॉल्स निकाल लेते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं साइट्स पे, उसकी बेसिस पे हम ये फैसला करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट को भेजा जा सकता है नहीं। तो इसके दो वो होते हैं। कई दफा हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अब इस काबिल नहीं है, इसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, इसे यहीं खत्म कर दिया जाए, नॉन डेवलपमेंट जाने की इसकी जरूरत नहीं है, या हम कहते हैं कि ठीक है चला जाए। फिर एक सिचुएशन ऐसी होती है कि प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं कि नहीं, इसे 1 साल का टाइम और दे दें, उसे डेफर कर देते हैं, उसमें चेंजेस करवा देते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अब एक डिपोजिटरी की जरूरत नहीं है, नॉन डेवलपमेंट भेज दीजिए, क्योंकि फाइनेंस भी रेजिस्ट कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा बर्डन लेना पसंद नहीं करता है। तो बहुत सारी सिचुएशन आ जाती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को भेज देते हैं, वो परमानेंट बजट का हिस्सा बन जाता है। और अगर PC4 ना बने तो खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती। अब तो वैसे 6 महीने का एक ब्रिजिंग कर दी गई है कि प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होकर जाएगा 6 महीने तक तनख्वाहें मिलती रहेंगी, और फिर प्रोजेक्ट अगर हो गया तो ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट और मजीद चाहती है, क्या चाहती है? PC5। ये जो PC4 है ये कहलाता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो कुछ आपने किया है। अब गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जिस प्रोजेक्ट में हमने लाखों के हिसाब से पैसा लगाया, वो उसने अपने ऑब्जेक्टिव भी अचीव किए कि नहीं। अगर फर्ज करें कि लिटरेसी किसी वक्त 40% थी, और आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि हम इस प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू वी विल रेज द लिटरेसी रेट फ्रॉम 40 to 60% इन द कमिंग 4 or 5 years, तो वो अगर वो 60 की बजाय 55 भी हो गई तो वी फील दैट वी हैव बीन सक्सेसफुल। अगर नहीं तो ये जो है प्रोजेक्ट जो है इसको आप फर्दर रिपीट नहीं करेंगे। और अगर गुड रिजल्ट्स आए तो फिर हम कहते हैं दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी रिपीटेड इन वेरियस एरियाज। तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट एवेल्युएशन, कि इस प्रोजेक्ट का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या आया। एक और छोटा सा कागज है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट पेपर। अब तो ये वो काफी कंपलसरी कर दिया कि जब कभी कोई आप, अब पंजाब गवर्नमेंट में जब कभी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं ना, तो आप एक पेपर, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करेंगे और PND को भेजेंगे। वो इस पे मीटिंग करके आपके इससे एग्री करेंगे तो आपको इजाजत देंगे PC1 बनाने की, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ये एसेंशियल हो गया है, इसका डिजाइन भी मौजूद है, अब उसके मुताबिक PND के साथ करते हैं इसे। अच्छा जी, अब जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, PC1 बन जाता है, ये मैं जब जल्दी जल्दी करता हूँ, बन जाता है, तो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते जब तक कि इन प्रॉपर जो ये फोरम्स हैं जो मैंने स्लाइड में आपको दिखाए, ये यहाँ से अप्रूवल ना हो जाए। ये पावर्स के हिसाब से रखा है। इसके 2 एरिया हैं, एक फेडरल लेवल पे है, एक प्रोविंशियल लेवल पे है। मैं जरा प्रोविंशियल लेवल से शुरू करता हूँ। DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है, ये 50 मिलियन तक के प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही क्लियर कर लेते हैं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक है DDD, डिपार्टमेंटल वर्किंग पार्टी, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। ये पहले DDSC हुआ करती थी, ये कमिश्नर के पास है, इसकी पावर है 200 मिलियन, और इनके जो सेक्टर्स इनसे रिलेटेड है उसकी ये अप्रूवल दे देते हैं। ये DDC। फिर अगेन आप ऊपर से कंफ्यूज होंगे, ऊपर DDC है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है, ये है डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी है असल में इसका नाम, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे कर दिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की पावर है, उसको दी है 400 मिलियन की पावर, कि जैसे आपका सेक्रेटरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, उसके पास ये पावर है कि 400 मिलियन तक के प्रोजेक्ट की वो खुद अप्रूवल दे सकता है। इससे जब बढ़ेगी कीमत तो दैट विल बी रेफर टू द PDWP, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। इसकी भी जो जी 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 सर, मैं बहुत माजरे चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करने का, आपका टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बट लंबा बहुत है। मैंने जो लास्ट टाइम अनीस साहब थे ना, उनसे मैं मिला था, मैंने कहा था कि देखिए ये हम जो 2-3 महीने में पढ़ाते हैं, ये 1.5 घंटे में हम क्या पढ़ाएंगे। सर ठीक है,
नेक्स्ट प्रेजेंटर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया सर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आपके इस लेक्चर की कंटिन्यूटी में एक लेक्चर और करवाएं सर, इंशाल्लाह। ये अगर हो ना तो फिर मैं बहुत बहुत सारी एग्जाम, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी इसी काम पे गुजरी है। मैंने पीएनडी में ज्यादा पढ़ाने का काम किया, एमपीडीडी मैंने खुद एस्टेब्लिश किया है। सर तो सर ये पढ़ाने का मजा आता है, पार्टिसिपेंट सामने बैठे, क्वेश्चन भी मैं कर सकूं। मैं हमेशा क्वेश्चनों के साथ पढ़ाता हूँ। चले, मैंने वैसे बड़ी कोशिश की है कि मैं लेक्चर में करूंगा। एक लफ्ज रह गया है, वो मुझे सर, स्लाइड दिखाना है, सिर्फ दिखा देता हूँ। सर प्लीज। ये रफ कास्ट एस्टिमेट्स बनाने के तरीकाकार जो हैं, ये सीएनडब्ल्यू का काम है। जो रेवेन्यू पोर्शन वो महकमा ही बनाता है। अब ये पूछेंगे ये क्या है, अब ये महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये बच्चे खुद बच्चे ही हैं, ये हमारे तो स्टूडेंट है। ये देख लें कि ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप डेवलपमेंट को, अपने महकमे की डेवलपमेंट के लिए जरूरी समझते हैं। कि बेंचमार्क पोजीशन, सिचुएशनल एनालिसिस, आप इस वक्त कहाँ हैं, आगे क्या डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं सिचुएशनल। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ स्कीम्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एडीपी, ये आपके महकमे का काम है कि जितनी स्कीमें हैं उसे हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं और न्यू स्कीम ऐड करते हैं। ये महकमे का काम है। इंक्लूजन ऑफ फाइनलाइज स्कीम्स इन एडीपी, आप एडीपी की स्कीमों का प्रोसेस करके अप्रूवल करा के फिर पीएनडी को भेजते हैं एडीपी में शामिल करने के लिए। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं एडीपी में आपने शामिल करा लिए लेकिन पीसी3 नहीं बनाया, उसे बना के विद इन देर ताकि प्रोजेक्ट डिले ना करे। पीसी1 ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीसीज, पीसी1 भी बनाना महकमे का ही काम है। गेटिंग अप्रूवल ऑफ द फाइनलाइज स्कीम्स फ्रॉम द कंसर्न फोरम, जो मैंने अभी आपको दिखाए। फिर है कंडक्टिंग रिव्यू मीटिंग्स। मॉनिटरिंग जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा वाइटल है। अगर इसे नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। एवेल्यूएशन ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ताकि आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट को जा सकें, क्योंकि तनख्वाहें कंटिन्यू उसी सूरत में होंगी जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट पे आप आ जाएंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स टू द नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये वो एवेल्यूएशन कमेटी में लेके जाते हैं। ये एरिया था। अब इससे आगे मेरे ख्याल है कुछ स्लाइड तो नहीं है। देख लीजिए, कोई अगर आगे सेशन आप कहीं एडजस्ट कर सकते हो तो कर लीजिएगा। मैं इसे और बहुत शुक्रिया। तो इनको प्रोफेसरों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी, जी, इनका बिल्कुल फील्ड सर। अलग है। इनका फील्ड अलग है, ये इससे किसी का टच नहीं। लेकिन किसी को, जब मैं आपको माजरत के साथ, मैंने जब ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी थी, इकोनॉमिक्स की भी खातून थी वहाँ, यकीन करें वो हैरान और परेशान हो गई थी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें असाइनमेंट मिलती है और उसका रिजल्ट ये निकला था, 2 साल तक वहाँ के प्रोफेसर मेरे पास आती रही कि मेरा पीसी1 बनवा दें। चले जी, ठीक है, कैसे बहुत आप शुक्रिया आगे सर। करेंगे। थैंक यू ओके ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक वालेकुम सलाम। क्वेश्चन मैं काफी देर से